رونق رشتے علماء کرام، اسلامی رشتے کی میرے ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری منارہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، کرم کا سلسلہ ذروں سے لے کر کہکشاں تک ہے، کرم کا سلسلہ ذروں سے لے کر کہکشاں تک ہے، اور نوازش میرے آقا کی زمین سے آسماں تک ہے، نوازش میرے آقا کی زمین سے آسماں تک ہے، گلابوں کی مہک باغیچوں تک محدود ہے، لیکن گلابوں کی مہک باغیچوں تک محدود ہے، لیکن میرے سرکار کی خوشبو مکان سے لامکان تک ہے، سبحان اللہ۔ میرے سرکار کی خوشبو مکان سے لامکان تک ہے۔ ماشاءاللہ مجھ سے قبل آپ تمامی حضرات نے جناب عقید الرحمن صاحب قبلہ سے بہت اچھا کلام، بہت اچھی آواز میں سماعت کیا، ان سے قبل آپ نے خطاب سماعت کیا۔ میں آدھے گھنٹے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، فہرست طویل ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ بہت کم وقت میں اپنی گفتگو کو آپ لوگوں کی سماعت کے حوالے کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت حافظ و قاری زبیر حسانی صاحب قبلہ کا کلام بھی آپ لوگوں کو سماعت کرنا ہے۔ آپ تمامی حضرات بیدار ہیں، سننا چاہتے ہیں؟ عادت کے مطابق چند اشعار میں آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات مل کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ خصوصی کلام جو آج کے لیے میں نے تیار کیا ہے، میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ سبھی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بگڑی بھی بنائی جائے گی، بگڑی بھی بنائی جائے گی، قسمت بھی جگائی جائے گی، بگڑی بھی بنائی جائے گی، قسمت کو جگایا جائے گا، بگڑی بھی بنائی جائے گی، قسمت کو جگایا جائے گا، بگڑی بھی بنائی جائے گی، بگڑی بھی بنائی جائے گی، قسمت کو جگایا جائے گا، اور جو آئے ہیں ان کی محفل میں، جو آئے ہیں ان کی محفل میں، دکھ سب کا مٹایا جائے گا، جو آئے ہیں ان کی محفل میں، دکھ سب کا مٹایا جائے گا۔ تیزی کے ساتھ میں شعر پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ چادر بھی چڑھائی جائے گی، لنگر بھی لٹایا جائے گا، چادر بھی چڑھائی جائے گی، لنگر بھی لٹایا جائے گا، چادر بھی چڑھائی جائے گی،
चादर भी चढ़ाई जाएगी, लंगर भी लुटाया जाएगा। और ये जलसा है शाह वली बाबा का। अब तो कह दे सुभान अल्लाह। ये जलसा है शाह वली बाबा का, ये जलसा है शाह वली बाबा का, हर साल मनाया जाएगा। ये जलसा है शाह वली बाबा का, हर साल मनाया जाएगा। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए, जितने नबी वो सबके सब महशर में बुलाए जाएंगे। जितने हैं नबी वो सबके सब महशर में बुलाए जाएंगे। जितने भी नबी हैं सबके सब, जितने हैं नबी वो सबके सब महशर में बुलाए जाएंगे। एक ज़ाते मोहम्मद, एक ज़ाते मोहम्मद, एक ज़ाते मोहम्मद है जिसको महशर में मनाया जाएगा। एक ज़ाते मोहम्मद है जिसको महशर में मनाया जाएगा। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे हैदरी, या अली, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या जो रसूल आए अल्लाह। हैं इनकी महफिल में दुख सबका मिटाया जाएगा। और बिन देखे जब ये आलम है, क्या सरकार को हमने देखा है? नहीं देखा है, लेकिन हमारा ईमान है अल्लाह की ज़ात सलामत, अल्लाह के महबूब की जो ज़ात है वो हम सब की निगाहों के सामने है। इसलिए कि हम और आप अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, हम और आप अल्लाह के रसूल से सच्चा इश्क करने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। नबी को हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में इस दुनिया को पैदा फरमाया, अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में आसमान को पैदा फरमाया, अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में ज़मीन का फर्श बिछाया, अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को पैदा फरमाया। तो जब हमने नबी को नहीं देखा है, हमारे ईमान का ये आलम है। अगर हम नबी को देख लेंगे तो हमारी किस्मत का क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं ये शेर पहुंचाता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। बिन देखे जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या होगा। सरकार के चेहरे अनवर को, सरकार के चेहरे अनवर को जिस वक्त दिखाया जाएगा, सरकार के चेहरे अनवर को जिस वक्त दिखाया जाएगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद कलाम मजीद की आयत करीमा को मैंने तिलावत किया। मेरा रब इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, बेशक वो लोग जिन्होंने नेक आमाल किए। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, तो वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग जो नेक आमाल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मोहब्बतों को लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है। आज हम और आप कुतुबुद्दीन बाबा के दरबार में आज हाजिर है, इनसे हम मोहब्बत करते हैं। ये अल्लाह वालों की जात है, अल्लाह वालों की शान का क्या कहना। अल्लाह वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना बुलंद वाला मकाम अता फरमाता है। आप जरा गौर करें, मैं आपके सामने एक वाकया पेश करता हूँ, इससे आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह अपने वलियों को कौन सा मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। हजरत शेख सुलेमान की बारगाह में एक मुरीद आता है और आने के बाद कहता है, गजब हो गया, मेरी जो लड़की है वो लड़की गायब हो गई, 2 साल की लड़की है, वो लड़की गायब हो गई। घर के अंदर देखता हूँ लड़की नजर नहीं आती, मोहल्ले में देखता हूँ लड़की नजर नहीं आती, बस्ती में देखता हूँ लड़की नजर नहीं आती, चारों तरफ मैंने अपनी बेटी को देखा लेकिन कहीं वो नजर नहीं आती है। अल्लाहु अकबर। आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचे हैं, अल्लाह के वलियों की शान जरा मुलाहिजा करें, अल्लाह अपने वलियों को कितना बुलंद व बाला मकाम अता फरमाता है। अब वो मुरीद कहता है कि मैं अपनी पीर के बारगाह
बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद अर्ज करने लगा, मेरी बेटी घर से गायब हो गई, 2 साल की बेटी है, घर से गायब हो गई, घर के अंदर देखा कहीं नजर नहीं आती। मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि आप मेरी बेटी का इंतजाम कर दे, आप मेरी बेटी के बारे में मुझे मुत्तला कर दे, मेरी बेटी के बारे में मुझे खबर कर दे। अल्लाहू अकबर। शेख सुलेमान उससे कहते हैं कि जा, अल्लाह जब चाहेगा तेरी बेटी तेरे घर में आ जाएगी, अल्लाह जब चाहेगा तेरी बेटी तेरे घर में आ जाएगी। अल्लाहू अकबर। अब वो मुरीद अपने घर की तरफ जाता है, जाने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि मेरे पीरो मुर्शिद से मैंने कलाम किया, मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा है अल्लाह जब चाहेगा तेरी औलाद तेरे घर पर आ जाएगी। अल्लाहू अकबर। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, यहाँ तक के महीने साल गुजरने लगे, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए। उसकी बीवी कहती है जरा बताओ तो सही, अपने पीरो मुर्शिद के पास तुम पहुंचे थे, क्या पैगाम लेकर आए? वो कहता है मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा है अल्लाह जब चाहेगा औलाद तेरे घर में आ जाएगी। मैं अल्लाह के भरोसे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। अल्लाह अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत फरमाता है, एक माँ अपने बच्चे से किस कदर प्यार फरमाती है, लेकिन अल्लाह 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाहू अकबर। अब वो मुरीद कहता है अपनी ज़ौजा से अल्लाह जब चाहेगा औलाद घर में आ जाएगी। 5 साल का अरसा गुजर गया, 10 साल का अरसा गुजर गया, 15 साल का अरसा गुजर गया। अल्लाहू अकबर। 17 साल गुजर गए, 18वें साल की जब बारी आती है अपनी बीवी के पास पहुंचता है, उसकी बीवी कहती है 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, तुम यही कहते हो अल्लाह जब चाहेगा बच्चा आ जाएगा, अल्लाह जब चाहेगा तुम्हारी औलाद तुम्हें मिल जाएगी। आज के बाद इस घर के अंदर दाखिल ना होना, आज के बाद इस घर में अपने पीर का नाम ना लेना। 18 साल बच्चे को हो गए, आज तक बच्चा घर में नहीं आया है, अब इस घर के अंदर अपने पीरो मुर्शिद का नाम ना लेना। अल्लाहू अकबर। अब वो मुरीद बड़ा अफसरदा हो जाता है, मायूस हो जाता है, और मायूस होने के बाद अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद अपने पीरो मुर्शिद को सलाम अर्ज करता है। आपके पीरो मुर्शिद शेख सुलेमान उससे कहते हैं कि तुम सही वक्त पर आए हो, इसलिए कि आज मुझे हजरत अली की सुन्नत याद आ गई। आज मैं अपने सर के बालों को तरशवाना चाहता हूँ, सर के बालों को मुड़वाना चाहता हूँ, क्योंकि वो पेशे से नाई था, पेशे से नाई था। अल्लाहू अकबर। अब जब वो मुरीद पहुंचा है, और मुरीद पहुंचने के बाद अपने पीरो मुर्शिद के दाएं तरफ से जब बाल को तराशना शुरू करता है, अपनी बीवी की बात याद आ जाती है कि बीवी ने मुझे ताना दिया है कि घर के अंदर जब तक दाखिल ना होना, जब तक हमारी औलाद नहीं आ जाती, घर में जब तक दाखिल ना होना, जब तक हमारा बच्चा हमें नहीं मिल जाता। अल्लाहू अकबर। अफसरदा होकर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचता है, और जब ये बात को याद करता है, जब अपने बीवी के ताने को याद करता है, याद करने के बाद आंखें नम हो जाती है। अल्लाहू अकबर। जब आंखें नम होती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, दाएं तरफ का हिस्सा अपने पीरो मुर्शिद का वो तराश चुका था, उसके आंसुओं के कतरात जब पीरो मुर्शिद के सर पर गिरते हैं, जब आपको गर्मी महसूस होती है, आप जब नजर उठा के देखते हैं, क्या देखते हैं कि आपका मुरीद रो रहा है, आपके मुरीद के आंखों में आंसू जारी है। अल्लाह वालों की शान क्या है जरा मुलाहिजा करें। जब अपने मुरीद के इस हाल को देखा है कि उसके आंखों से आंसू जारी है, अल्लाहू अकबर। आप पूछते हैं बता तो सही किस वजह से तू रो रहा है, किस चीज ने तुझे परेशान किया है, तेरे रोने का सबब क्या है? अल्लाहू अकबर। जब इतना कहता है तो पीरो मुर्शिद जब इतना अपने मुरीद से फरमाते हैं, अल्लाहू अकबर, वो कहता है मेरी बीवी ने ताना दिया है, मैं अपनी बीवी से हमेशा कहा करता था, मेरे पीरो मुर्शिद का कहना है कि जब अल्लाह चाहेगा औलाद मिल जाएगी, जब अल्लाह चाहेगा औलाद घर में आ जाएगी। अपने पीरो मुर्शिद पर मुझे इतना भरोसा है, आपने कहा है तो औलाद घर में जरूर आएगी। अल्लाहू अकबर। मेरी बीवी ने मुझे ताना दिया है, मेरी बीवी ने मुझे ताना दिया है, मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाला है। मुझे वो बात याद आ गई, जब मुझे बात याद आई मेरे आंखों से अश्क जारी हो गए, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था, इतना कहना था। पीरो मुर्शिद जलाल में आ जाते हैं, अपने मुरीद से कहते हैं अभी के अभी अपने घर की तरफ चला जा, तेरा बच्चा तेरे घर में आ चुका है। क्या फरमाया? अभी के अभी अपने घर की तरफ चला।
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب پیر صاحب نے کیا کہا؟ اپنے گھر کی طرف چلا جا، تیرا جو بچہ 2 سال کی عمر میں غائب ہوا تھا وہ بچہ تیرے گھر میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ والوں کی شان تو دیکھو، آج کے زمانے میں لوگ عقیدوں پر حملہ کرتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہوں میں جا کر کیا مانگا کرتے ہو، تم ان سے مدد مانگتے ہو، یہ شرک ہے۔ آج کے زمانے میں لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے مدد کسے کہتے ہیں، اللہ نے تو فرمایا ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے تم یہ کہتے ہو کہ مدد مانگنا شرک ہے۔ جب تم گھر بناتے ہو لوگوں سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہو تب یہ مدد نہیں ہے۔ جب تم شادی کرتے ہو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو کیا یہ مدد نہیں ہے؟ اللہ کے ولیوں کے گھر دیار میں جب اپنا مرید کوئی چاہتا ہے، جب ان کا جانے والا جاتا ہے، لوگ ان کے عقیدوں پر سوال اٹھاتے ہیں، لوگ ان کے عقیدوں پر سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مانگنے کا بھی طریقہ ہے، مانگنے کا بھی طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ اللہ والوں کے جب دیار میں جایا کرے، خدا کی بارگاہ میں جب ہم مانگتے ہیں ان کا وسیلہ پیش کر کے مانگا کرے، اے اللہ میں آج تیرے محبوب کے گھر میں آیا ہوں، تیرے محبوب کے در پر آیا ہوں، اس محبوب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، مولا میری دعا کو قبول فرما لے، مولا میری التجا کو قبول فرما لے۔ مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے، اللہ اکبر، جب وہ بندہ رات کی تنہائی میں جب پوری دنیا چین کی نیند سو رہی ہوتی ہے، اپنے گھر کے اندر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، مولا میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مولا قدم قدم پر مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، اے مولا تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ تیری بارگاہ میں سر نہ جھکاؤں تو کس کی بارگاہ میں سر جھکاؤں؟ مولا تو ہی غفور ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، مولا مجھ پر کرم فرما دے، مولا مجھ پر رحم فرما دے، تو ارحم الراحمین ہے۔ تیری صفات ہے مولا کلام پاک کے اندر جو تو نے بیان کی ہے، مولا میں تیری صفتوں کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اپنے محبوب کے صدقے میں میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میری التجا کو قبول فرما دے۔ جب بندہ خود سے دل سے خدا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو ہاتھ اس کے نیچے کی طرف نہیں آتے ہیں، اللہ دعا قبول فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے ولیوں کی شان ذرا ملاحظہ کرو۔ اب پیر صاحب کہتے ہیں اپنے مرید سے، شیخ سلیمان کہتے ہیں جاؤ اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ، تمہارا بچہ تمہارے گھر میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر، جب اپنے گھر کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں، 18 سال کا عرصہ گزر گیا، اس بچے کو غائب ہوئے، جب آپ گھر کی طرف جاتے ہیں اللہ اکبر کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے، اے ماں میں تجھ سے جدا ہو گیا تھا، میں تجھ سے دور ہو گیا تھا، مجھے تیرا پیار نہ ملا، مجھے تیری محبت نہ ملی۔ اللہ اکبر، اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے۔ اولاد کا اور ماں کا رشتہ کیا ہوتا ہے یہ ماں سے پوچھو۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، حالات کا جائزہ لے، پتہ یہ چلے گا کہ جب بندہ کوئی جوان ہو جاتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اللہ اکبر اپنے ماؤں کو اپنے باپوں کو گھر سے باہر نکالتا نظر آتا ہے۔ آج کا یہ عالم ہے، آج کے نوجوانوں کا یہ رویہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرہ برابر شرم و لحاظ نہیں ہوتی ان نوجوانوں کو کہ جس نے اپنی انگلیوں کو پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، وہ ماں جو 9 مہینے اپنے گود میں اپنی بچے کو لے کر گھومتی رہی، بچے کے درد کو برداشت کرتی رہی، اس بوجھ کو برداشت کرتی رہی۔ آج کے زمانے کے اندر جب وہ نوجوان اس کو ہم سفر مل جاتا ہے، اپنے ہم سفر کے عشق میں اتنا زیادہ وہ ملوث ہو جاتا ہے کہ ماں اور باپ کی محبت پر بیوی کی محبت غالب آ جاتی ہے، ماں باپ کو گھر سے باہر نکالتا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اپنے اخیر عمر کو پہنچ جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لہما، تو تم انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، تم انہیں نہ چھڑکو۔ اللہ اکبر، ماں باپ کی ذات وہ ذات ہے جس کا ذکر اللہ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر آپ دیکھیں لوگ اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالتے نظر آتے ہیں، ماں باپ بستر عدالت پر پڑے ہیں، لیکن اولاد کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے ماں باپ کا خیال کر لے۔ اللہ اکبر، یہ ماں وہ ماں ہوتی ہے کہ جب اولاد
पर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, ये माँ रातों को उठकर अपने आंचल को खुदा की बारगाह में उठाकर इल्तिजाएं करती है, मौला मेरे औलाद को सलामत रखना, मौला मेरी औलाद को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, मेरी औलाद की किस्मत में जितनी परेशानियां हैं मौला वो परेशानियां मुझे दे दे, लेकिन मेरी औलाद को मुसीबत में मुलव्विस ना फरमाना। ये माँ की इल्तिजाएं होती है, माँ की दुआएं हुआ करती है। लेकिन आज के ज़माने में हम जब देखते हैं नौजवान अपने माँ बाप के साथ क्या सुलूक करते हैं, दिल रोता है। माँ बाप को जब सताते हैं, माँ बाप को जब उनका दिल दुखाते हैं, हमारा दिल रोता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका की हदीस पाक है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे वालिदैन, जिक्रे वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अब वो मुरीद जब अपने घर पर पहुंचा, माँ से लिपटा हुआ अपनी औलाद को देखता है, उस औलाद को अपनी तरफ मुखातब करता है, सीने से लगाता है, वो बाप भी रोने लगता है। अल्लाह अकबर। आज के ज़माने में अगर हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है, अगर वो चीज़ मिलती है किस कदर खुशी होती है। अगर औलाद गुम हो जाए 18 साल के अरसे के बाद अगर वो औलाद मिले तो खुशी का ठिकाना ना रहेगा, क्या आलम होगा खुशी का। अल्लाह अकबर। बाप के सीने से वो औलाद लगती है और रोने लगती है। अब उसका बाप पूछता है, जरा ये तो बता, 2 साल की उम्र से तू गायब हुआ, आखिर तू गया कहाँ था। अब उसकी औलाद कहती है, मुझे इल्म नहीं है कि मैं कहाँ था, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मुझे डाकुओं ने गिरफ्तार किया, मुझे किसी बादशाह के पास बेच दिया, और जब बेचा मैं उसकी खिदमत करने लगा। अब वो बादशाह जब अपने सफर महल से निकलने लगा सफर के लिए, अल्लाह अकबर, जब महल से सफर के लिए निकलने लगा, अपने घोड़े के ताल्लुक से कहता है, मेरे घोड़े को तैयार किया जाए, मैं सफर का इरादा करता हूँ। मैं उसके घोड़े के लगाम को पकड़ा हुआ था, किसी खूबसूरत चेहरे वाले को अपनी निगाहों के सामने देखता हूँ, वो अपने साथ लेकर मुझे उड़ते हैं और इस घर में लाकर मुझे छोड़ते हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं, तेरी माँ तेरे सामने है, ये तेरा घर है, तेरा बाप आने वाला है। अल्लाह अकबर। मुझसे इतना कहकर वो रवाना हो गए। अल्लाह अकबर। अब बाप कहता है, जरा बता तो सही उनका नाम क्या है। वो कहता है कि मुझे उनका नाम का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। बाप कहता है, क्या तुझे पता है, क्या तूने देखा। उसकी औलाद कहती है कि मेरे पास जो आए थे, मुझे जिन्होंने अपने घर की तरफ हवाले किया है, अपने माँ बाप के हवाले किया है, उनके दाएं तरफ का हिस्सा मुड़ा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके दाएं तरफ का हिस्सा तराशा हुआ था, मुड़ा हुआ था। जब वो मुरीद इतना सुनता है, अपनी ज़बान हाल से कह उठता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूबीन को बड़ी शान से नवाजता है, बड़ी ताकत से नवाजता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें पावर देता है। और बुजुर्गाने दीन का तो ये कहना है, जब किसी ने पूछा कि क्या अल्लाह वाले जीते जी लोगों की मदद किया करते हैं, बुजुर्गाने दीन ने लिखा है कि जीते जी तो वो कम मदद करते हैं, लेकिन जब अल्लाह के सपुर्द, अल्लाह के हवाले हो जाया करते हैं, तो अपने चाहने वालों की और ज्यादा मदद फरमाया। लिहाजा वक्त काफी हो रहा है, वक्तों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे और आपके यहाँ हाजिर होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह वालों की मोहब्बत में हम और आप यहाँ हाजिर हुए, तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा, महबूब की महफिल को, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो हम और आप आए नहीं हैं, हमें बुलाया गया है। हमारी किस्मत कि अल्लाह ने अपने और अपने महबूबीन के जिक्र के लिए हमें और आपको चुना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मेरे कहने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिसकी प्यारे मोहब्बत में हम और आप हाजिर हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मोहब्बत में हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस महफिल को हमारी बख्शिश का जरिया बनाए। सभी हज़रात मेरे साथ मिलकर पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने सुनने में जो खता हुई हो अल्लाह उसे माफ फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दुनिया और आखिरत में इसका बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम।